you're working with TVF, Yeah, right? yeah, कितना टाइम हो गया है? For me, it's going to be 7 years now. वाओ, मतलब 7 साल से you're with TVF. 2015 में CA final दिया था. He was CA final first rank. Wow. Yeah, I know, right? But he was sad. What? Yeah, because I didn't get first in all of the 3. Shit, seriously? By the way, मैं जब इंटर का रैंक आया था, 10th रैंक आया था, तब मैं भी थोड़ा खुश नहीं था, बट रीचेकिंग पे डाला था मैंने, and then 10 से 5 हो गया था. Really? तो इसलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट. चलो शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. आई थिंक मैं भी एक्टर बन सकता हूँ. क्या बात कर रहे हैं? अरे यार, I think you should have auditioned for this. What kind of acting can I do? आलो ले लो कांदे. CA में 4 लेटर वर्ड RANK से ज़्यादा 4 लेटर वर्ड PASS ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये रिवील के आर्ची क्लास में एंटर कर जाती है. क्लास में जब एंटर करती है, विशाल एंटर नहीं करता. वी नो कि विशाल हैज फेल्ड एंड आर्ची हैज पास्ड. राइट नाउ हाफ CA सीजन 2 लाइक वी हैव फिनिश्ड विद राइटिंग. शूटिंग हो गई है, एडिट चल रहा है. वी डोंट नो कब रिलीज होगा. I was reading a very interesting report which mentioned that people who look good usually earn 20% more as compared to people who don't look good. People who are let's say doing some sort of surgeries in order to look better, look good, ऐसे कोई करते हैं? Getting your nose fixed, buccal fat removal, you change your skin tone, there are gluta injections that you put into, dark skinned person to become a fair person, then lips, everything that you can think of can change. Okay, if you see हेरा फेरी, कौन फनी है उसमें? परेश रावल, अक्षय कुमार. या 3 लड़के फनी है. मैं इतने धमाल में कौन थे 4 लीड्स जो फनी है? 4 लड़कों की कहानी है. गोलमाल में कौन फनी है? 5 लड़के फनी है. Women usually are not funny actors. Why do you say that? आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों ने हाफ CA वेब सीरीज देखी होगी, राइट? आज हमने हाफ CA वेब सीरीज के राइटर को बुलाया एंड वी हैव स्पोकन एवरीथिंग अबाउट कि राइटिंग का क्या एंटायर प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है एक पूरी वेब सीरीज का स्क्रिप्ट लिखने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि राइटिंग इंडस्ट्री में कितना पैसा कमाया जा सकता है. नॉट ओनली दैट, द गेस्ट वॉज वेरी काइंड इनफ टू शेयर हर एंटायर स्क्रिप्ट ऑफ राइटिंग हाफ CA एंड फर्स्ट ड्राफ्ट कैसा होता है एंड फाइनल ड्राफ्ट कैसा होता है. दैट इज ऑल्सो बीइंग शेयर्ड ऑन द स्क्रीन इन दिस एंटायर एपिसोड. वी हैव कॉल्ड खुशबू बेद, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइटर, एक्टर एंड अ डायरेक्टर एंड इज वर्किंग एट TVF since the last 7 years, and this is for anyone who wants to understand कि writing industry में कितना effort होता है and आपको पूरी web series लिखने में भी कितना time लग सकता है. So make sure to watch this entire episode, and I was going through our YouTube analytics which mentions that 88.7% of our audience is not subscribing to our content. अगर मैंने आपको थोड़ी सी भी value दी है तो I request all of you to subscribe to this channel so that we can bring you better quality of guests and give you the maximum value possible. Also a special thanks to the Sleep Company who've sent this amazing chairs for our podcast shoots, and these chairs are simply amazing. बहुत ज़्यादा comfortable है and even all the guests are finding it very very comfortable. These chairs have the patented smart grid technology which will ensure that you don't have back pain throughout whenever you are sitting. So if you want these chairs, click on the link in the description box, use my code Kushal5 and you'll get an additional discount when you purchase using my code. So let's get back to this episode and watch this entire show of Conversation with Kushal. Hi Khushbu, welcome to Conversation with Kushal. कैसे हो आप? I'm good, Kushal. How are you? I'm all good. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Actually, this is actually my very first podcast, so I hope I do justice to this. All this thing. You're doing a fab job, so I just want you, to maintain that. No, actually, आप एकदम बढ़िया काम कर रहे हो. Transitioning from being a chartered accountant to now being a writer, actor, and a director. फर्स्टली मेरे को तो बताओ, आपको एक दिन में कितने घंटे होते हैं वो बताओ. 24 घंटे से तो ज़्यादा ही हो गया आपके पास. I really wish so, but it gets hard, man, doing all of this together. It's like, breakdown होता है बहुत बार, but this is something that you like doing, so you just continue to do that. Yeah, but I wish we had more, like 28 hours or 30 hours a day at least. But I am just seeing this trend. अभी ना मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, so even I'm a chartered accountant and I'm seeing this trend कि बहुत सारे लोग unconventional चीज़ें करना चाहते हैं. मतलब पहले क्या होता था कि मैंने जैसे CA किया है तो मेरे मॉम डैड हमेशा बोलते थे कि यार तूने CA किया है तो तूने फाइनेंस में ही कुछ करना चाहिए. मेरे पापा को चाहिए था कि मैं एक इनकम टैक्स में प्रैक्टिस सेटअप करूँ एंड वो रेड केसेस होते हैं ना, इनकम टैक्स के रेड, हाँ, सर्च एंड सीजर, तो वो वाले केसेस हैंडल करूँ. एंड आई वाज लाइक कि मेरे को उसमें मज़ा नहीं आता, इतना पढ़ना,
इनकम टैक्स असेसमेंट लिटिगेशन सब, तो मेरे को जो मज़ा आता है उसमें वो करो। तो आई एम सीइंग अ ट्रेंड नाउअडेज की भले ही लोगों ने अगर फाइनेंस का कुछ कोर्स किया है बट उनको जो पसंद है या तो उनको अनकन्वेंशनल चीज़ें करना पसंद है तो वहाँ पर वो शिफ्ट हो रहे हैं। Yeah. दिस इज समथिंग विच आई एम सीइंग। Yeah, and actually it's a good thing, you know, because like when I was growing up, I didn't have many options. It was like engineering, doctor, this thing, and that's why I chose CA. Like और option था नहीं, मुझे पता नहीं था. And then if there is an option to, you know, diversify and find out what you're good at, then you should do that. Like that's what I did, and it worked for me. Like thank God it worked for me. तो चलो आपके बारे में बताओ ज़रा कि आपने बेसिकली सीए बनने के बाद भी कैसे एक्टिंग या डायरेक्टर या राइटर में ट्रांजिशन किया, एंड आपको ऐसा नहीं लगा कभी भी कि चलो सीए बन गए तो एक बढ़िया सी हाई पैकेज जॉब ले लेते हैं एंड उसके बाद स्विच करते हैं? हाँ, तो बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि मेरे को है ना बचपन से ही एक्टिंग करना था। यू नो बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है उनको क्या करना है, एंड आई वॉज वन ऑफ देम हु न्यू ऑलवेज दैट मुझे क्या करना है। एंड देन आई डिसाइडेड यू नो कि मम्मी पापा को नहीं बोल सकते कि एक्टिंग करना है। कम फ्रॉम अ मारवाड़ी जैन फैमिली, सो द रिस्ट्रिक्शंस ऑन गर्ल्स आर टू मच। तो ऑब्वियसली मैंने बोला नहीं था, तो फिर जो ट्रेंड था कॉमर्स लिया, सीए किया, एंड देन फिर भी नहीं बोला। सीए होने के बाद भी आई वॉज वर्किंग विद EY in Hyderabad, and I was in tax consultant. I was working with people advisory services and everything. And then you know that's when my mental breakdown started. Like that's the first time I've experienced depression for me. You know, मेरे को नहीं पता था उससे पहले क्या होता है. After that job I realized no, this mental thing, because this was not what I wanted to do. I never imagined my life behind a laptop ever. और फिर 24 घंटे एंड EY का फर्स्ट 6 months इज़ हॉरेबल व्हेन यू स्टार्ट। लाइक अगर लाइक यू नो अभी जो रिसेंट केस हुआ, आई कुड रिलेट टू हर, यू नो, क्योंकि इट वॉज दैट हार्ड फॉर मी एज वेल। एंड आई वॉज लाइक अगर मेरे को स्ट्रगल करना है तो मैं बॉम्बे जाके स्ट्रगल करूँगी, मैं यहाँ पे मेंटल स्ट्रगल नहीं करने वाली। एंड आई डिडंट टेल माई पेरेंट्स। मैं सो आई एम ऑल्सो वेरी एनालिटिकल, ठीक है, CA हूँ, ऐसे ही कुछ नहीं करती मैं। तो आई वॉन्टेड टू ट्रेन माई सेल्फ, देखना था कि आता भी है या बस शौक है। एम आई अट्रैक्टेड टू द फेम और ग्लैमर, या मेरे को काम से मेरे को प्यार है ये एक्टिंग से। सो दैट्स व्हेन मैंने मम्मी पापा को नहीं बोला कि यू नो मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। EY वॉज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे मैंने थिएटर के क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैदराबाद में। ये सीए बनने के बाद है? नहीं, तो सीए बनने के बाद है, सॉरी। एंड सीए कब क्लियर किया था आपने? मैंने सीए क्लियर किया था मई 2015 में। Okay. आई स्टार्टेड वर्किंग विद मतलब आर्टिकलशिप, और होते होते नवंबर 2015 हो गया, एंड 30th which is today actually, 30th November 2015 was my first day at EY. ओके, गॉट Yeah. इट। एंड फिर आपने EY में कितने साल काम किया? साल नहीं किया मैंने। मैंने 6 महीने में मैं भाग गई थी उधर से, बट हाँ 6 महीने तो थी। एंड आई पुट डाउन माई पेपर्स एट द एंड ऑफ 6 months. गॉट इट, ठीक है। हाँ, तो बता रहे थे आप कि वीकेंड पे आप? हाँ, वीकेंड पे मैंने थिएटर क्लासेस स्टार्ट किया। अभी भी पेरेंट्स को पता नहीं था, मैं बोलती थी ऑफिस जाना है, और मान भी जाते थे EY है तो ठीक होता होगा इनको वीकेंड पे काम। तो मैं आई वॉज वेरी सिंसियर, ऑफिस मिस कर दूँ मैं, बट आई यूज टू नेवर मिस माई थिएटर क्लासेस। एंड देन तब मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत एक्सप्रेसिव हूँ मैं। एंड मैंने जाके सर से पूछा, द वन हु वाज ट्रेनिंग अस, कि सर आई रियली वांट टू ट्रेन माई सेल्फ, मैं कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए। गो टू हैदराबाद यूनिवर्सिटी, एक ड्रामा स्कूल मुंबई बोल के नाम लिया। मैंने जाके सारा गूगल किया, सब गूगल किया, और एक ही कोर्स था जो स्टार्ट हो रहा था जुलाई में, दैट वाज ड्रामा स्कूल मुंबई। आई वाज लाइक भागने का अच्छा मौका है। अगेन उसका पूरा प्रॉपर ऑडिशन राउंड्स होता है। फिर मैंने मम्मी पापा को नहीं बोला, एंड आई वाज लाइक मेरे को बॉम्बे जाना है। माई मासी स्टेज इन बॉम्बे, सो आई लाइक आई वांट टू मीट देम, आई हैव नॉट मेट देम सिंस आई हैव बिकम अ CA। आई नीड द यू नो मनी एंड ऑल, CA बनने के बाद पैसे मिलते हैं। मैं ये सब बहाना बोल के मैं आई, और मैं ऑडिशन देकर आई। एंड देन आई केम बैक टू हैदराबाद। Within 1 month I got to know I got selected in drama school, and I was like it was a big opportunity for me. एंड फिर मैंने जाके सबसे पहले अपने मैनेजर को बोला कि बाय, एंड उसके बाद मैंने जाके अपने पेरेंट्स को बोला कि यू नो उधर हो गया है, इट्स अ वेरी गुड स्कूल, मतलब काफ़ी अच्छे लोग आ रहे हैं। सो बाय दैट टाइम रोशन मैथ्यू का कुछ आ गया था, एंड यू नो दे आर लाइक अ गुड मलयालम एक्टर। सृष्टि श्रीवास्तवा हु इज़ अ गलियापा फेस वॉज फ्रॉम द ड्रामा स्कूल मुंबई। सो आई शोड देम कि यहाँ के बच्चे यू नो अच्छा काम कर रहे हैं, सो लेट मी ट्राई एंड एवरीथिंग।
माई पेरेंट्स वर लाइक इसको रोकेंगे तो ये रोकेगी नहीं. उनके दिमाग में तब चल रहा था इसको जाने दो, खुद ही भाग के आ जाएगी ये. तो दे सेंट मी एंड आई केम टू बॉम्बे एंड आई स्टडीड एक्टिंग फॉर 1 year. आई सीए जस्ट बनने के बाद या वाह मैंने ऐसे ही नहीं किया, मैं ऐसे ही उठ के ऑडिशन देने नहीं गई. आई स्टडीड एक्टिंग फॉर 1 year. आई ट्रेंड माई सेल्फ इन एक्टिंग, गॉट टू नो कि मैं अच्छी हूँ ख़राब हूँ क्या हूँ. आई असेस्ड माई सेल्फ एंड देन आई स्टक टू दिस करियर. अगर इफ़ आई वुड हैव फेल्ट कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं शायद आई वुड हैव गॉन बैक टू यू नो working as a CA and doing tax and everything, but I really felt कि I could do this, so I stuck to it. So why did you choose CA in the first place? See again okay, क्या हुआ था in 11th-12th में in Hyderabad you have to choose your stream, so I chose commerce and तब मैंने ICSE से SSC shift मारा था, ठीक है. And I realized, and जो कॉलेज गई थी it was very popular in Hyderabad and it was very crowded, ठीक है, बहुत crowded था. तभी that year they started a CPT section and मैं CPT section देख कर आई, बहुत खाली था, कुछ नहीं था. तो I was like मेरे को इस crowd में नहीं बैठना, मैं नीचे चली जाती हूँ. SSC से ICSE से SSC गई थी तो I was feeling very bad, you know, कि I degraded myself. So if I tell myself कि मैंने I'm taking a CPT coaching, I didn't know what CPT coaching was, by the way. I didn't know. I'm just taking something and I shifted that class. बाद में पता चला मैंने क्या कर दिया है. मतलब माई पेरेंट्स न्यू वॉट CA वॉज, आई डेंट नो एनी थिंग. लाइक इवन इफ आई वॉज अ मारवाड़ी, आई वॉज ऑलवेज इन टू बिजनेस एंड एवरीथिंग, बट इट जस्ट स्टार्टेड बिकॉज आई वॉन्टेड अ प्लेस टू सिट इन द क्लास रूम. एंड देन आई रियलाइज गॉड व्हाई डिड आई डू दिस. एंड हाफ CA में एक सीन है in the first episode itself where you know Archie, the main character, is telling to her mother कि मम्मी मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना है. And that scene exactly happened to me like 10-12 years ago, 15 actually now, 15 years ago कि मम्मी मेरे से नहीं होगा, I'm not that intelligent girl, like you expect me to become a CA, मतलब मेरे से नहीं होगा ये. And she's like नहीं, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तेरे को करना पड़ेगा, तूने ले लिया अब तो what you started you finish. And even I believe अगर कुछ start करो तो complete करो. So I was like ठीक है, अब ले लिया है तो करते हैं. And then that's how CA journey started. And luckily सब first attempt में हो गया. I think आप modest बन रहे हो, आपका of course hard work तो बहुत ज़्यादा होगा. हाँ, hard work था, but you know I always believe कि there was a certain amount of luck also, like you know ऐसा नहीं है सभी hard work कर रहे हैं, right? Like tell me one CA student who's not working you're hard. right. We need that 1% of luck that really worked for us, I guess. तो फिर एक बात बताओ, I read in one of your interviews also, I listened to in one of your interviews where you said that you started questioning yourself when you wanted to become an actor. Yeah. And you were also saying in that same interview कि बहुत लोग मतलब एकदम यहाँ पे ये इंडस्ट्री में क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे कि मैं एक्टिंग कर भी पाऊँगी नहीं पाऊँगी, मैं ये इंडस्ट्री में जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी. सो व्हाट हैपेंड इन दैट फेज? So I told you like मेरे को एक्टर, I always knew what I wanted to become, but one of the reasons I didn't tell anyone was, see when you जब आप स्क्रीन देखते हो, आप मेरे जैसे कितने एक्टर्स को देखते हो. लाइक हम लोग जब बड़े हो रहे थे, there was करीना कपूर, करिश्मा कपूर, you know actresses like that, like a proper you know fair skinned, a particular body shape, a particular height. And मेरा सब opposite है, like I'm not that tall, I'm not that like you know slim, and I don't have that color. And ये मेरा दिमाग का था कि अगर मैं बोलूँगी किसी को कि मुझे एक्टर बनना है तो सब मेरे पे हंसेंगे, तेरी शक्ल है क्या एक्टर बनने वाली. सो आई नेवर टोल्ड एनीवन. एंड या सो दैट्स द थिंग. बट अगेन आई थिंक इट वाज इन माय हेड ओनली. बट फिर जब CA हो गया देन आई वाज लाइक क्या करें, मतलब आई वाज गोइंग थ्रू रियली हार्ड मेंटल टाइम एट दैट टाइम. आई वाज लाइक I'll handle all of that. This is something I can't handle. So yeah. So how did you tackle that then? Because ये बहुत बार होता है लोगों के साथ कि एक मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं when things don't happen as per them and समझ नहीं आता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है. So was there someone who guided you, someone who motivated you, या तो क्या किया आपने वो टाइम पे? I'll tell you one thing. जब आप डिप्रेशन में होते हो ना, तुमको, for me it was, I have this image very clearly. It was like I was in a well and I was shouting बचाओ 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 बचाओ. But the thing is कोई बचाने नहीं आता है क्योंकि you are shouting and no one can hear you. You have to take that rope and pull yourself up. And that's what I did. Like I was in a well and I was shouting bachao bachao bachao, but taking those theater classes for me was the game changer. Like you have to, you know, take the steps to move ahead in life. No one is going to come and help you at that time. So for me
that those theater classes was like getting out of the well and starting to get normal again, because 5 days in the week कैसा भी हो, those the weekends were very good for me. So धीरे धीरे it, and then after I left ठीक हो गया सब कुछ. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे यू लेफ्ट EY एंड मैंने आपके एक और जो स्टॉक में सुना था कि आपने बेसिकली कुछ आपका एक और आपको जॉब लेना था एंड देन पार्टनर राउंड का कुछ इंटरव्यू हो रहा था एंड देन यू डिड नॉट गो टू दैट इंटरव्यू एज वेल. सो दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर ड्रामा स्कूल. 1 साल का ड्रामा स्कूल किया एंड आई वेंट बैक टू हैदराबाद, क्योंकि सर्वाइविंग अगेन it took me a long time to get over that, because I was like, मुझे कौन काम देगा, I don't look a certain way, an actress is supposed to look. I don't look like that, and I can't face rejections. So I went back to Hyderabad, and Hyderabad जाने के बाद my parents were like, तुम क्या कर रही हो, what are you doing? I was like, I'm aiding, I'm trying to figure out what you are. And they're like, नहीं ये सब नहीं चलेगा. Sorry, you're aiding? I was doing AD work, मतलब क्या होता है? Assistant direction. Okay. So there was some YouTube channel in Hyderabad that was coming up, so I was just like writing for them. In my Telugu is also not good, so Hyderabad Hindi में मैं लिखती थी, and then direction, there was a particular director, so I used to assist her and edit पे बैठना, तो वो सब किया. And I wasn't making much, and being in a Marwadi family, if you're not making much, you're not doing anything in life. So they're like, you can't continue this. तुम देखो तुमको क्या करना है, अदरवाइज यू कांट स्टे. आई एम लाइक, आई कांट स्टे मतलब वेयर आई गो, लाइक तुम देखो तुमको क्या करना है. हाउ मच वर यू मेकिंग बैक देन? Oh, I hardly anything, like 10,000 rupees a month. I was, EY का starting package क्या होता है, मतलब 10-12 lakhs तो होता ही है यूजुअली. नहीं तब नहीं होता था, तब 8-7 अभी आई थिंक 10-12 हो गया. या तभी 2016 की बात कर रहे हो आप? 15-16 तभी तब 7.2 था, and I came down to 10. But for me that time was like, यार वो पैसे मेरे लिए खुशी नहीं थे, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू मतलब जो चीज़ गुजर के मैं वो पैसे कमा रही थी, फॉर मी इट वॉज नॉट वर्थ इट एट ऑल. आई नो वे यार कुछ पैसे नहीं थे, एंड इट वॉज लॉन्ग आवर्स एंड एवरीथिंग, बट आई वॉज नॉट लाइक लॉन्ग टर्म में मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिगर आउट करते हैं. एंड इवन वेन वी आर डूइंग CA, वी डू आर आर्टिकलशिप. वॉट डू वी गेट पेड इन आर आर्टिकलशिप? Peanuts, right? But those 3 years our parents give us that time, right, to go through that. Same चीज़ मैंने फील्ड शिफ्ट की है, मैं जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप, so it's not that bad. Like I used to get paid 2,000 per month in my articleship, and for me this was not bad. 10,000 per month भी ठीक है यार for the starting, and but they don't get it because you're a certain age and everything. So they were like, तुम जाओ इंटरव्यू करो, and I was like, चलो करते हैं, टाइम पास करते हैं. So I went, I interviewed in Deloitte, 1-2 banks में interview किया and everything. And when I entered Deloitte, Kushal, it was exactly like EY, same infrastructure, the same CUG, same bulletin boards. And I don't know क्या हुआ, when I was walking through the walls, I was like, I went through shit at that time, right? Everything came back to me, like, those crying in the washrooms, those crying while going in the car, or coming back from the, coming back from office. सब कुछ आया, and partner round होने वाला था. I was about to enter the cabin, and I was like, नहीं मुझसे नहीं होगा. So you didn't do the interview? I didn't do the interview. Oh my God. I didn't do the interview. I turned and I left, because I couldn't put myself through that again. Like, it's very like, most of them don't understand what you go through at that time, but you have been through that, and you have really fought yourself, रस्सी खींची है, खुद को ऊपर उठाया है. 1 year of drama school was really good, and then again you want to go back into that well. I didn't want to do that, that's not me and everything. Luckily TVF का call आ गया within 2-3 months, and then I shifted to Mumbai. So tell me more about TVF. What happened with TVF? कैसे हुआ? Okay. किसका कॉल आया? Yeah. So okay, जब हम ड्रामा स्कूल करते हैं, you have to give your final presentation. मतलब एक प्रेजेंटेशन होता है, तो वो मैंने लिखा था, डायरेक्ट किया था, और उसमें एक्ट भी किया था. एंड माई को एक्टर्स वर आदर्श गौरव, इफ़ यू नो द पर्सन हु प्लेज वाइट टाइगर में, ही इज़ द लीड. Abhishek Chauhan, again, he's done many films like मस्त में रहने का, असुर and everything. So they were my co-actors and everything. And उनको लेकर मैंने एक play बनाया था. It was called State versus Thapa, और उसमें बहुत
मतलब बकचोदी पेली थी. I don't know if I'm allowed Yeah, to say yeah, that of word or course, not. yeah. बकचोदी पेली थी, and it was a very fun play, and that play really impressed the owner of the drama school, the principal of the drama school at that time, Jehan Manekshaw. And he was like, तुम्हारा humor is like थोड़ा TVF का humor. Do you want me to introduce to someone? I was like, क्या? Yes, like TVF has been the place that I wanted to be. Like मैंने पूरा CA इसके थ्रू निकाला है, like watching their sketches and everything. So yeah, please. And he was like, okay, I know Nidhi Bisht. I was like, Nidhi Bisht? Okay, please. फिर जैसे ही प्ले ख़त्म हुआ, ड्रामा स्कूल ख़त्म हुआ, आई वॉज अबाउट टू कम टू हैदराबाद एंड द मीटिंग विद निधि बिष्ट गॉट अरेंज्ड. जस्ट बिफोर दिस प्ले के बारे में बताओ. आपने बोला बहुत बकचोदी वाला प्ले था, तो Yeah. क्या एग्जैक्टली था उसमें, मेरे को वो जानना सो है. अगेन इसमें सीए की ट्रेनिंग काम आई. ठीक है, सीए में हम बहुत केस लॉस पढ़ते हैं, एंड यू नो यू आर डूइंग टैक्सेस एंड यू आर डूइंग दिस केस लॉ, दैट केस लॉ. एंड वहाँ पे मेरे को बोला गया था कि तुम्हें एक प्ले बनाना है. एंड मैं हमेशा आई बिलीव इन ओरिजिनलिटी, मतलब बचपन से कि मैं किसी का किया हुआ काम, किसी का लिखा हुआ प्ले तो नहीं करूँगी, मैं खुद बनाऊँगी. पर आता कुछ है नहीं, लिखना विखना. तो ट्रेनिंग हुई भी थी बट कभी ऐसे लिखा नहीं था. तो आई वाज लाइक, केस लॉ उठाते हैं, उसमें स्टोरी होती है, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट होता ही है केस लॉ में. सो मैंने गूगल किया टॉप 10 केसेस इन इंडिया, एंड एक केस मिला जहाँ पे अ पर्सन वॉज, मतलब एक आदिवासी औरत वॉज किल्ड बाय दिस गाय कॉल्ड थापा, बिकॉज जब वो उसे मार रहा था उसे लग रहा था वो भूत मार रहा है. सो फॉर मी दिस इमेज ऑफ अ कोर्ट रूम जहाँ भूत की बातें हो रही हैं वॉज वेरी लाइक फनी, कि इतने सीरियस जगह में अगर तुम बात करोगे कि भूत होते हैं नहीं होते हैं, यू नो कि भूत में मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए. फॉर मी दिस वॉज वेरी फनी बिकॉज ये जगह नहीं है ये सब करने की. आई वॉज लाइक, जैसे ही मैंने पढ़ा आई वॉज लाइक दिस इज़ द केस आई एम डूइंग. एंड फिर मैंने ट्रीट भी उसको वैसे ही किया था. और बहुत मतलब तब तो मुझे राइटिंग आती भी नहीं थी. बहुत स्टूपिड जोक्स भी होते थे, लाइक यू नो क्यों एडजर्न करवा रहे हैं सर, आज सर में माइग्रेशन का प्रॉब्लम है. ऐसे लाइक द जोक्स दैट डोंट मेक सेंस, लाइक नो वन वुड लाफ, बट थिएटर में चल जाता है थोड़ा बहुत ऐसे. एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम राइटिंग एज वेल. सो काफ़ी ऐसे जोक्स थे. तो एंड इट वॉज वेरी लाइक funnily written, and I had really great actors who you know did well. So बहुत बकचोदी है. You didn't act in this one. So I didn't act. बट क्या हुआ था, लास्ट मोमेंट पे वन ऑफ माई को एक्टर्स का फ्रैक्चर हो गया था. सो आई हैड टू रिप्लेस हर. सो आई वॉज जस्ट डायरेक्टिंग एंड राइटिंग द प्ले, बट हु एल्स वुड डू इट एट द लास्ट मोमेंट, बिकॉज जस्ट आई न्यू द प्ले, आई रोट इट एंड डायरेक्ट. सो आई हैड टू यू नो एंड मोमेंट पे मेरा एक्टिंग का भी सपना पूरा हो गया था वो प्ले में. So was it the starting point of your acting journey as well? Yeah, I mean, it was like acting to drama school is an acting school only. Like you do a lot of acting, but that was the place where I was the karta dharta of a piece. Like 15 minutes acting, writing, direction, सब किया था. This is the start of my journey as a creator, I feel. क्योंकि I'm not just an actor, I'm a writer, director, and that's where I got the confidence कि नहीं यार अपन कर सकते हैं. And so that's where it started. So how was the meeting with Nidhi Bisht? क्या हुआ उसमें? Okay, so I came to TVF office और मैं साइन कर रही थी रजिस्टर. And then came Biswapati Sarkar. Biswapati Sarkar is the writer of Pictures, Permanent Roommates, and a very funny person that I've seen a lot of sketches. And while I was signing, I was just looking at him, and he had just come to take his order. Zomato का कुछ order आया होगा या कुछ आया होगा. And I was like, that was my biggest fan moment. And he left. And I'm still like, एक और झलक मिल जाए तब निधि बिष्ट आ जाती है. And I'm like I admire that woman so much, and I'm like my hands are shaking, and okay, I do it, and she's like, come to the Galyapa room. I'm like, okay. And I went to the Galyapa room, and she's like, jam. I'm like, what is jam? She's like, writers just talk. And I was like, मेरे को पता नहीं, I don't know what happens in a writer's room. So there were few writers and they were talking. I don't remember the topic also. कुछ girly topic था and उस पे कुछ बोलना था, तो मैंने कुछ बोला, and I'm sure it must have been absolutely stupid what I have said, because this was my first time. And she was like, okay, now go. This was my interview for TVF. Totally like, I was used to a partner round, a senior consultant round, partner round, and everything. And this was just this कि तुम कितने ideas दे सकते हो एक space में. And then I went, that was my thing. And then I didn't get a call again. So I went back to Hyderabad. फिर
जब ये सब हो रहा था, व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग विद डेलॉयट एंड ऑल, निधि मैम का कॉल आता है एंड शी इज़ लाइक आ जा, लाइक कहाँ आऊँ, बॉम्बे आ जा, you're selected. And like that was the moment I think that changed my life. And So I mean, you really did well in that interview. I Jam don't काफी know. अच्छी I गई don't. होगी. I think it was State versus Thapa because Jehan, the owner of drama school, really recommended me. And if he's recommending someone, then I think Nidhi ma'am just took the plunge on me. She was like, she just gave internship ही था, तो I'm like, internship is the place where you learn, right? So yeah. तो एक बात बताओ, तो नाउ यू आर वर्किंग विद TVF, Yeah, राइट? yeah, yeah. कितना टाइम हो गया है? For me, it's going to be 7 years now. 7 years? Yeah. Oh, so you've I been started in 2018. Yeah. वाओ, मतलब 7 साल से you're with TVF. Yeah. तो इसमें कैसे होता है, like is it like you are doing a job at TVF or like do you get paid on a salaried monthly basis, या तो pay per project, actors को project basis पे payment See, कैसे होता usually है? because I'm a in-house person of TVF, so I get paid monthly. Okay, मतलब like a salaried employee. Yeah. Okay. I'm not a employee under them. I'm on contract basis. Okay. So monthly salary आएगी. Plus I can do something outside also if I want. Okay. Yeah. So जो मेरे Google Pay के ads थे, I've done few ads. क्या ads थे ये? It was just a Google Pay, 6 ads किए थे मैंने Google Okay. Pay पे. एक चला भी था ना, तू मुँह चला छोटे, एक वायरल एड था वो, तू मुँह चला छोटे गूगल पे यहाँ भी चलता है. सो आई डिड 6 of those ads. So Oh, that अच्छा. does not come under TV. That's my extra earning. So वो ads मतलब TV commercials थे वो? TV commercials Google थे, Pay के? yeah. अच्छा, you have acted in that? Yeah, I did. Okay. But मेरा वो भी था ना, किस्मत ऐसी खराब है. पहला ऐड मिला मुझे एंड यू नो वो वर्ल्ड कप सब जगह चल रहा है पर मास्क में. मैं मास्क में हूँ. सो एंड आई एम लाइक, ये कैसा ब्रेक मिला मुझे कि इट्स गोइंग सो वायरल, बट मेरी आंखें जिनको पता है सिर्फ वो पहचान पाए मुझे. बट हाँ, सो ऑल ऑफ दैट इज एन एक्स्ट्रा अर्निंग. इफ आई राइट, I'm not allowed to write somewhere because I'm just a writer, but when I act, I can act outside. जैसे मैंने bad news किया अभी outside TVF, so I get paid extra for that. Okay. Yeah. And इसमें how do you manage your time then? Can you help me understand कि कैसे working hours होते हैं, कितना घंटा कौन से project पे देना होता है, and how do you manage? Okay. So TVF में you're usually writing 2 things at once. ठीक है, तो usually ऐसा होता है कि when we have a writers room, जैसे अब हाफ CA का writers room बना था तो हम 3 writers थे, तो हम दिन के 4-5 घंटा जैम करते थे. जैमिंग इज़ जस्ट टॉकिंग कि ये स्टोरी यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है. एंड देन आई यूज्ड टू मूव टू अनदर राइटर्स रूम. कुछ जैसे आई वॉज राइटिंग दिस शो कॉल्ड अरेंज्ड कपल विच इज़ ऑन गलियापा, एंड देन अगेन उसका 2-3 घंटा का जैमिंग सेशन होता है. सो लाइक दैट्स लाइक 7 hours. So this is jamming. Then you come to writing. When I'm writing, I usually prefer कि मैं एक ही project लिख रही हूँ at a time, क्योंकि I usually happens, you know, first draft हमेशा I'm like I have only one thing and I'm continuously thinking about that one particular project. So that's what happens कि when I'm writing those 10-15 days I stay away from jamming from any other project. So yeah, that's how it happens. And it's very like work hours ना, जब टाइम है तब बहुत टाइम है बट जब टाइम नहीं है देन 24 घंटे भी कम पड़ते हैं. सो इट्स नॉट लाइक EY वेयर यू नो यू आर वर्किंग 16 hours a day or 14 hours a day every day. No, over here you work 20 hours a day, then you get days off as well. So it's very, I would say, very unstructured. काफी मतलब फ्लेक्सिबल है एंड इट्स Yeah. लाइक आपके ऊपर है कि ओके कब करना है. उनके डेडलाइंस है. डेडलाइंस मीट कर दो, कैसे भी करो, बनारस जाके करो, इधर करो, समझ जस्ट गया. डेडलाइंस मीट कर दो, गिव योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम. तो ये एक बात बताओ, ये जो इंडस्ट्री है, क्रिएटिव इंडस्ट्री में अगर किसी को जाना है, सपोज ये इंडस्ट्री में, सो हाउ मच दे कैन एक्सपेक्ट टू मेक? तो एक रेंज कितना बना सकते हैं पर मंथ बेसिस पे उनको? अगर मंथली सैलरी मिलती है तो फ्रेशर्स हाउ मच दे कैन एक्सपेक्ट ऑन अ पर एनम बेसिस? पर एनम बेस, सी इट्स बहुत सारे जॉब्स होते हैं इधर कि यहाँ पे देयर इज असिस्टेंट डायरेक्शन, देयर इज राइटिंग, एडिटिंग. तो विच फील्ड यू वांट टू गो इनटू, देयर इज कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग, वो सब भी है. सो फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू. And it takes time in this industry to make the money. It's not like, you know, you're going to make the money in your first year, second year. And it also depends, again, it's a very unorganized industry. It also depends upon the brand you make, the kind of people you work with. So if you ask me how much will you make,
इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू टेल बिकॉज अगर आप यशराज जाओगे आपका फीस अलग हो जाएगा, आप धर्मा जाओगे आपका फीस अलग हो जाएगा, तो और मतलब अगर आप TVF आओगे आपकी फीस अलग हो जाएगा. एज अ राइटर, एज एन एक्टर, As a writer, actor, everything, even as an AD, because the bigger the production house, usually the bigger the money, ओके. because they have that scale as well. So it's very unorganized. It's about how you build you fix your price. You know कि मैं इसमें नहीं आऊँगा, एंड फर्स्ट 2-3 years तो डोंट एक्सपेक्ट कि तुम पैसे कमाओगे. कमा लिया तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा लक है, बट इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम टू मेक मनी. लाइक इफ़ यू वांट टू इधर अभी, बिकॉज व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई वाज जस्ट मेकिंग इनफ टू सर्वाइव बॉम्बे. मेरा रेंट निकल जाए एंड मेरी जो बेसिक खाना पीना है वो निकल जाए, एंड आई वॉज द लकी वंस जो ये कर पा रहा था. Because when you are coming, most of them survive on parents' money or doing jobs that are not related to this field. कोई बाहर का जॉब करके यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसा होता है. तो जैसे हमारे इंडस्ट्री में जो कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री, आई फाइंड इट वेरी सिमिलर. मतलब इट्स जस्ट दैट कि ये कंटेंट क्रिएशन की थोड़ी अनऑर्गेनाइज्ड है इन अ वे कि क्रिएटर्स इंडिविजुअल है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड है. बट हम लोग के इसमें कंटेंट राइटर्स जो होते हैं उनको वो लोग अभी हमको पर स्क्रिप्ट भी चार्ज करते हैं एंड पर वर्ड चार्ज करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर राइटिंग 100 वर्ड्स तो वो बोलेंगे कि पर वर्ड का इतना रुपये होगा. तो ज़्यादा स्क्रिप्ट अगर बड़ी है तो उसके चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे. आई नो पीपल हु आर चार्जिंग ₹1000 पर स्क्रिप्ट ऑल्सो इफ दे हैव टू राइट अ 1 रील स्क्रिप्ट. मतलब 1000 पर स्क्रिप्ट फॉर 1 रील स्क्रिप्ट फॉर क्रिएटर्स हु आर हैविंग मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स. तो उनका मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ओके 15 रील स्क्रिप्ट चाहिए हर मंथ में, तो ओके मंथली 20,000 या 15,000 पर मंथ. एंड देन इसके अलावा यूट्यूब स्क्रिप्ट है तो उसका चार्जेस अलग, क्योंकि यूट्यूब की स्क्रिप्ट बड़ी होती है, उसमें पर वर्ड बेसिस पे होता है. सो इज इट द सेम इन योर इंडस्ट्री और हाउ डज इट हैपन? No, it's not the same. For us, like now, I'm writing episodes, so it's per episode. ओके. And वो भी like see TVF में I'm in-house, so they can make me write n number of drafts. But बाहर अगर आप जाओगे 3 ड्राफ्ट देंगे आपको, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकेंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट. ऑब्वियसली इट्स ऑन द राइटर्स कैपेबिलिटी के है ना 3 ड्राफ्ट में अच्छा आ जाए, क्योंकि व्हेन आई एम एट TVF वी राइट 10-20 ड्राफ्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एपिसोड. कभी ख़त्म ही नहीं होता है, शूट डे तक हम लिखते रहते हैं. बट बाहर ऐसा होता है कि मतलब आउटसाइड TVF फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकेंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, एंड इट्स नॉट ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स और एवरीथिंग. इट्स एक ड्राफ्ट स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे उसमें आप 120 पेजेस दो, 90 पेजेस दो, दैट्स नॉट द थिंग. अ स्टोरी यू चार्ज ऑन, सो यू गेट योर मनीज ऑन स्टोरीज, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स. दीज आर द 3. स्टोरी का अलग पैसा मिलता है, स्क्रीन प्ले का अलग मिलता है, डायलॉग का अलग मिलता है. सो इट्स दैट डिवाइडेड. बट एट TVF वी डू ऑल द 3 थिंग्स टुगेदर. लाइक स्टोरी भी हम लिखेंगे, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स भी हम ही करेंगे. सो आई कैन डू ऑल 3 टुगेदर, एंड आई प्रेफर डूइंग दैट, क्योंकि टू स्टार्ट टू एंड इट्स अंडर माई कंट्रोल, राइट. या तो लेट्स से अगर एक न्यू राइटर है जो अभी इंडस्ट्री में लाइक वेरी न्यू है एंड उसने जस्ट अभी फ्रीलांस बेसिस पे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया है, तो पहली बात उसे मिल गए. हाँ वो मिलेगा क्या उसको? तो मिलेगा ही नहीं क्या? हाँ, आई डोंट नो यार. सी आई गॉट लकी विद TVF. बाहर व्हेन यू स्टार्ट बहुत गोस्ट राइटिंग करना पड़ता है. लाइक तुम करते जाओ, तुम्हारा नाम ही कहीं क्रेडिट ही नहीं है. And ghost writing is you are writing for someone, so he must be taking $1 lakh to write something and he'll be giving you 10,000 and you are doing the whole work. So all of that also happens over here. So and that to build that, what फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे भी नहीं मिलता, गोस्ट राइटिंग भी नहीं मिलती है, तो उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है. एंड देन काम करते करते मे बी द पर्सन यू आर वर्किंग फॉर विल गिव यू द क्रेडिट वन डे, एंड यू हैव टू डू दिस विद मल्टीपल पीपल. इट्स वेरी लाइक स्ट्रैटेजाइजिंग कि यू नो इसके साथ मैं करूँगा तो मेरा कुछ होगा नहीं होगा. वेरी लाइक इट्स अ वेरी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री. लाइक आई कैन नॉट टेल यू कि ये विल वर्क, वॉट वर्क फॉर मी विल वर्क फॉर यू. दैट डजंट हैपन. इट्स योर जर्नी एंड यू हैव टू डू इट. So when people ask me also like how do I get into TVF and all, I'm like I didn't come via this, I came via reference, so it won't work for you. Right. And bahar bhi when I see a lot of people in the industry, they are still struggling like right now all my writer friends, they get called कि आप आओ लिखो हमारे लिए. बट जो स्टार्टिंग है उनको अभी भी गोस्ट राइटिंग करनी पड़ती है एंड यू नो असिस्ट समवन. देन धीरे धीरे इट्स अगेन अ लॉन्ग 10-year जर्नी के नाम आएगा, फिर पैसे आएंगे. या I think patience is very patience important. And your passion is very important. Like Right. you are not here for the fame, glamour or anything. It's for you love the art. That's why you're here. Do you think that
in this entire industry, जो media industry and where you are also now acting, writing, directing, looks matter a lot and favor दिया जाता है to people who look good. For sure. Looks ही है जो मैटर कर. I shouldn't say this, but I really feel it's the looks that, again, for man it's different, for a woman it's different. For man, मतलब थोड़ा कम भी होगा चलेगा, but for a woman, like, that's why you see them, right, getting so much of work done on their face, because अगर if you don't look a certain way, काम नहीं मिलेगा. And I don't blame the women who, you know, get so much work and do something like that, because you have to keep up. It's about your confidence also, because you get rejected, you are told ki you don't look a certain way. So yeah, mentally also you have to be very strong over here. So it is the looks that matter. I really feel कि अगर मेरा थोड़ा और, you know, fairer skin और वो सब होता, my journey, because I feel I'm a decent actor, my journey would have been a bit different. Like I still don't get leads, right, in a show. There's a reason for that, because a particular kind of girls are given preference. So what do you think needs to change, or why is this happening? Because अगर talent है किसी के पास, then looks is something which is not up to them. That is something which is not in their control. Yeah. अभी how someone is born and all that is something which is beyond the control of the person. So what do you think needs to change here? I think nothing can change, you know, क्योंकि हम लोग train हो गए हैं कि हमारे लिए एक certain kind of beauty है. मतलब if you imagine what's beauty for you, you think ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, क्योंकि हमें वही ट्रेन किया गया है. वहीं हॉलीवुड में what the kind of heroines, like Indian origin की heroines, they are never fair skinned. If you see Mindy Kaling, or if you see Simone Ashley, the Bridgerton heroine, they are all dark skinned women. So they are being trained कि ये Indian beauty है. पर हमारे लिए Indian beauty is, you know, a particular skin tone, a particular figure. So you've been trained, subconsciously you've been trained for like 100 years now. So even the audience knows कि ये सुंदर है, ये नहीं है, मैं इसको देखना चाहूँगा, मैं इसको देखना नहीं चाहूँगा. And it's very apparent over here कि हम सेम दुनिया में हैं. एक हॉलीवुड में of dark skinned women like a Mindy Kaling and all are doing really well, they are getting lead roles, और सेम चीज़ इंडिया में नहीं हो रही है. It's kind of, it's like, if I might be wrong, but it's, I also think it's how you train your audiences also कि ये सुंदर है, so you get attracted to this. And I've thought about this a lot, and this has been my, you know, conclusion कि what needs to change, I really hope is वो जो नज़रें हैं वो चेंज हो, जो तुमको काम दे रहे हैं वो चेंज हो. जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि एंड आई थिंक द स्क्रिप्ट डायरेक्टर सब मिलकर वो काम अगर अच्छा बनाएंगे तभी कुछ चेंज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. लाइक आई डोंट सी चेंज like in like 50 in my lifetime, so I don't expect a change, but let's see, hopefully something. So are there like people who are, let's say, doing some sort of surgeries in order to look better, look good, ऐसे कोई करते हैं? Yeah, it's very common, नहीं? Okay. It's very common, like everybody. क्या होता है, like क्या करते हैं? See, I don't know much, but because I'm also a writer, I'm not an actor, but you know, getting your nose fixed, buccal fat removal, you change your skin tone, there are gluta injections that you put into how from a, you know, dark skinned person to become a fair person, then lips, everything that you can think of can change. Yeah, then your breasts, everything, like, yeah, then the stomach that you see that is so flat, it just doesn't come like that. There's, you know, a lot of surgery done to make it look like that, like. Yeah. My God, it sounds scary, but sometimes, I mean, isn't it harmful? और side effects तो हो गए ना कुछ बाद में होंगे, like I think so है, because you see the actors, दिखता है उनके चेहरे पे surgeries apparent, like younger years में छुप जाएगा, but as you grow old, it will look weird on you. And I think also these were the first generations that were getting it done. The technology will enhance, so maybe in 50, like when these heroines are turning like in their middle age and everything, technology और advance हो जाएगी, so it won't be that bad also. Because if you see, when the surgery and all started, it's the first generation that has come into the mid 50s and everything, and you can see the
scarring and everything, but I think that will change. Yeah. I was reading a very interesting report which mentioned that people who look good usually earn 20% more as compared to people who don't look good. And that report mentioned that it's primarily because their chances of selection increase and they are given, like, first preference is given to them in some sort of work, and if they perform well then their chances of promotion increase. That was the report, and I was surprised also at the same time that इसके basis में मतलब जो लोग अच्छे दिख रहे हैं उनको 20% ज़्यादा मिल रहा है. Yeah. That was like fascinating. Yeah, I mean, it's very. And this was not in media industry, by the way. This was across like everywhere. Yeah? This, like, even in finance, like in all the law firms, Yeah. in across like consulting companies and all. Wow. मतलब that was not in the media industry, Wow. but everywhere. Yeah. I can believe सबको सुंदरता अच्छी लगती है. So maybe Yeah. just not by objects, people भी सुंदर हो तो ऑफिस अच्छा लगेगा आएगा, तो maybe that's Probably, why. yeah, that was like something fascinating. Yeah, very. This is interesting. Tell me one thing. So in your Joe Stock, you also mentioned that women usually are not funny actors. Why do you say that? Because ऐसा नहीं है, women, मेरे को लगता है women को they are not given the script to be funny. I'm not saying women are not usually funny actors. I'm like, okay, if you see हेरा फेरी, कौन फनी है उसमें? परेश रावल, अक्षय कुमार. या 3 लड़के फनी है. मैं इतने धमाल में कौन थे 4 लीड्स जो फनी है? 4 लड़कों की कहानी है. 4 गोलमाल actors. में कौन फनी है? 5 लड़के फनी है. मैं बोल रही हूँ लड़कियों को आज तक मटेरियल कहाँ दिया गया है टू बी फनी? ऐसा नहीं है लड़कियां फनी नहीं है. आई फील रीमा लागू, जब शी, आई डोंट नो इफ यू कम फ्रॉम दैट जनरेशन, बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप वी यूज्ड टू सी तूतू मैमे. Tutu Meme, she was so funny in Tutu Meme. When I see her in films, I just see her doing the same mom roles in Hum Saath Saath Hain, Kal Ho Na Ho, and she's a damn good actor. So I feel if you're not given the material to be funny, even if a woman is funny, you will never be able to see that. And also I feel कि इतने सब time पे we have male writers, right? All the people who are writing are male. तो for them, तुम क्या लिखोगे जो तुम पर आप बीती होती है? तो इफ द वुमेन इज इरिटेटिंग, इट विल बी ऑलवेज लाइक चिल्लाने वाली हमेशा औरत रहती है, एंड द गाय इज सफरिंग, तो इसके साथ कॉमेडी हो रही है. अभी तक हमारी साइड ऑफ स्टोरी किसी ने बोली ही नहीं है. मतलब लड़कियां कैसे फनी होंगी जब वी ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम्स विद द मेल काउंटर पार्ट्स, राइट? बट नो वन टेल्स अ स्टोरी. एंड आई अग्री, लाइक वी हैव जस्ट, मेरे को तो अभी लगता है अभी हमने कलम उठाना स्टार्ट किया है. तुम लोग men are doing this for 70 years and so on, much more. We have just picked up the, like I've seen a lot of women writers, like obviously males ज़्यादा हैं, women writers, पर हमने start किया है. हमारी like when Garlyapa started, periods के बारे में कोई बात नहीं करता था. Now periods is very common to talk, but when we started it was like, अरे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We have to tackle it thisly, इस पे joke नहीं ले सकते. अब हम खुलेआम जोक्स ले सकते हैं. तो दैट्स द ट्रेनिंग दैट वी गेव द ऑडियंस फॉर 6 years कि पीरियड्स के बारे में बात करना नॉर्मल है. अब हम आए हैं वो स्टेज पे कि हम उस पर जोक लें. पहले इज लाइक यू कैन नॉट टेक अ जोक, राइट? देन इट विल बी लाइक व्हाट आर दे टॉकिंग. यू हैव टू जस्ट फर्स्ट लाइक न्यूट्रलाइज द ऑडियंस कि देखो इसके बारे में बात होगी, ये नॉर्मल है, एंड देन सडनली यू कम अप विद अरे दैट्स फनी नाउ. या सो इट टेक्स टाइम. लाइक आई फील, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एक्चुअली ऑल्सो, कि women being funny, this is what I want to work on. That's why I work with Garlyapa, because it's generally a comedy channel and it's for women. Like, tell me one women centric comedy channel in India, in in fictional area. It's just Garlyapa that survived for so long. Tell us more about Garlyapa. What exactly is that and क्या कैसे शुरू हुआ था, क्या हुआ था? So I wasn't there when Garlyapa started. I came after like 2 years of Garlyapa, and when I joined, we had just hit 1 million subscribers. But Garlyapa, I think, is a subset of TVF. मतलब TVF is the main channel, and इसमें 4 other channels are. There's Timeliners, there's TSP, Garlyapa, and Garlyapa is female-centric comedy channel. Like, so all the बकचोदी अराउंड गर्ल्स हम वो करते हैं. सो हमारा एक बहुत हिट शो था कॉल्ड गर्ल्स हॉस्टल. उसका फर्स्ट एपिसोड था ब्रा चोर, कि गर्ल्स हॉस्टल में ब्रा की चोरियाँ होती है, एंड दैट एपिसोड वेंट लाइक 20 million in 1 week. My God. Yeah. On YouTube? On YouTube when Wow. it released. And then, Sony Live picked it up because it was such a hit show. But, like, ये चीज़ें जो ये साइड ऑफ स्टोरीज ऑफ वुमेन जिनको किसी कभी ने बताया नहीं, हम वो ट्राई करते हैं कि हम वो बताएं. Did you write that? I didn't write that. Okay. There was this writer, Shreyasi
Ashish and Chirag, they wrote it. I was just an actor in that. अच्छा, you have acted in I'll that. tell you a story also. So I was just a writer and they knew कि I could act. So तुम आ जाओ set पे, तुमको देंगे. So मेरा first episode में my character name was girl 1. ठीक है. Second में it was girl 1. Third episode में they gave me a name Palak. Okay, now I'm Palak. Okay, let's play Palak now. Fifth episode में पता चला मेरा नाम पलक डिसूजा है. अच्छा मैं क्रिश्चियन हूँ. I was like, what's happening? Because they were writing it as they were releasing it. Like, so it was very this thing कि पूरा like that's how the character was made. पहले I was nameless person. I was just with this person. Then I got a name. Then I got a character. So it's a very gradual journey, yeah. And I'm surprised that it came in 2018. I had a very minuscule role and everything. फिर भी लोग मुझे आजकल पहचानते हैं उस रोल से. मतलब इतना चला होगा गर्ल्स हॉस्टल. तो it's like a series. It's a series. We've done 3 seasons of it. Sony Live पे. मतलब Sony Live picked it up. Okay. Yeah. And कितना होता है duration on an average? 20 minutes. अच्छा. 20 minutes. Yeah, it's a full. मतलब first season is like full sitcom-y, girls being funny kind of a zone में. Yeah. What are some other popular shows that you have written or acted in? I've done this show called Interns. That was my first ever show that I wrote, and I played the character of the boss lady in that called Sugandha. So again उसका भी writing process was like 1.5 year, and pandemic आ गया, so it got more in, मतलब और बढ़ गया वो. But that was my first ever show that I wrote. It stars Esas, Revati and Rashmi Agdekar, and I was the boss, playing the boss in that. Yeah. Got it. And like Yeah, this I did. Then उसके बाद I was doing sketches and all. फिर हाफ सी आ गया. मतलब इंटर्न्स के 2 सीजन्स लिखे, दैट्स 10 एपिसोड्स. फिर हाफ सी है. देन मैंने सिस्टरहुड लिखा है. अभी गलियापा पे 2 shows चल रहे हैं, दैट्स सिस्टर्स एंड अरेंज्ड कपल. आई राइट एंड आई डायरेक्ट देम. Got it. So let's spend some time on Half CA, which Yes. will be very interesting Yes. for me as well as the audience as Yes. well. बताना कि how did this happen? इसका idea कैसे आया Half CA का? तो TVF अगर आप देखोगे, कोटा फैक्ट्री बनाया था, एस्पिरेंट्स बनाया था, तो बहुत एक आ रहा था कम्युनिटी से आए कि इसकी CS पे भी कुछ बनाओ. Were you the one who gave this idea? I wanted to, but मतलब मेरे को बोला जा रहा था, जो एस्पिरेंट्स के राइटर हैं दीपेश, वो बोल रहे थे कि तुम जाओ अरुणाब से बात करो, बोलो कि तुम्हें CA पे शो बनाना है, वो दे देंगे. बट आई वॉज ऑलवेज लाइक स्कैर्ड कि यार मैं मतलब हम गलियापा राइटर्स है, वो मेन चैनल का शो देंगे नहीं देंगे. बट उनसे ही आया कि CA पे शो बनाना है और उसका टाइटल रखेंगे हाफ CA. आई वाज लाइक, पहली बात ये टाइटल बहुत अच्छा है, बिकॉज हमें सेमी क्वालिफाइड CA ये सुनने मिला था. एंड आई वाज लाइक हाफ CA हैज़ अ रिंग टू इट. मतलब ही ओनली केम अप विद द टाइटल एंड ही वाज लाइक, खुशबू इन कंपनी में CA है तो तुम करो. तो इनिशियली फॉर 4-5 months मैं अकेली ही थी वो प्रोजेक्ट पे. मैं ही कुछ आइडियाज़ लेकर जाती थी. फिर एक और राइटर आए, हरीश, उस पर. He's the writer of Hostel Days on Amazon Prime, so he's done a lot of shows. So he came and फिर हमने काफ़ी बैठ के एक स्टोरी बनाई. I wanted to start a CA story from articleship. फिर हम अरुणाब के पास गए कि सर यहाँ से स्टार्ट करना है. वो बोले नहीं, यहाँ से कुछ स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा. सो आई एम लाइक CPT से. ही वाज लाइक नहीं, 12th के एग्जाम से. आई वाज लाइक सर, बट like that's not the like for me the hardest part for me was the articleship, and that's what's different, right? In all the other courses, like यहाँ पे तुम पढ़ाई और काम एक साथ कर रहे हो. and he was like हाँ वो करेंगे, but let's start tell people what CA is. so we started from उसका 12th का एग्ज़ाम से. एंड ये बात सर ने बहुत अच्छी बोली थी कि CA में कितना अच्छा है ना, तुम 12th का एग्ज़ाम देते हो, नेक्स्ट डे से तुम CPT की कोचिंग या फाउंडेशन की कोचिंग कर लेते हो. दिस इज़ सच अ गुड ड्रामेटिक पॉइंट. यू ऑल डोंट इवन कि CA स्टूडेंट्स को एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है कि आज एग्ज़ाम दिया 12th का एंड देन नेक्स्ट डे CA कोचिंग में लग जाओ. सो ही वॉज लाइक स्टार्ट फ्रॉम देयर, दैट्स वेयर द हुक इज़. एंड आई वॉज लाइक हाँ, व्हेन आई थॉट अबाउट इट, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है. सो दैट्स हाउ. एंड देन हाँ, सो CA शायद शूट हुआ होगा 20-25 दिन. राइटर्स 1 साल लिखे हैं वो शो. We wrote it. It's 5 episodes. We wrote it for 1 year. Obviously, we were doing other projects as well, but it took us 1 year to make that show what it is. Like continuously drafting, redrafting. एक शो पूरे कितने घंटे का होता है टोटल? कितने एपिसोड्स थे? I think एक episode is about 30 to 40 minutes. And तो कितने you can episodes imagine 5 episodes. So Okay. 40, yeah.
तो 2.5 घंटा 3 घंटा टोटल. हाँ 2.5 घंटा का शो है. So 3 घंटे का शो बनाने के लिए it took you 1 year to write 1 year to write. and 5 writers. 3 writers. 3 writers. Yeah. My God, I know. I mean like. it's a lot of time. And it's a lot of नहीं बनाना है वो वाला शो, बिकॉज बहुत बार आता है कि यार गिव अप कर देते हैं, बट टू राइट एंड कम अप विद स्टोरी लाइन्स, क्योंकि सबको पढ़ाई देखनी है. बट अगर मैं तुम्हें 20 घंटे 2.5 घंटे सिर्फ एक औरत को पढ़ता हुआ दिखाऊंगी, क्या तुम देखो? आई मीन लाइक उससे अच्छा मैं पढ़ाई कर लूंगा. एग्जैक्टली. इट डजंट मेक इट इंटरेस्टिंग. सो व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स यू कैन कम अप विद एंड एवरीथिंग. आई एक्चुअली हैव अ फोटो लाइक व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग. आई विल शेयर इट विद यू वन या श्योर. अब उसका मैंने फोटो लेके रखा है कि so these are post-its, okay? And okay. I'll pass it. हाँ मैं वैसे भी दिख सकता हूँ. हाँ okay. ठीक है. Okay. So if you see, I've made a like किस पे episodes बन सकते हैं. So there's like dummy versus this thing. CA में कितने like छोटे वन लाइनर्स लिखे थे मैंने कि and इस पे क्या बनाना है अभी. The best I think is what MS Excel and MS Word leaves in articleship. Your relationship with your friend who doesn't clear, okay? When boss is not in office, you want him to go client place. So these were all my got it. observations and everything. So I Oh, this is the best. Sorry, food at client place for free. This is Yeah. the best. And reimbursement fraud. Very relatable actually. All these things are very relatable. So I was like, these are the themes that a CA student goes through. Yeah. So starting इससे की थी कि ये चीज़ें होंगी CA में. अभी Got इस it. पे कैसे स्टोरी में कैसे डालनी है ये सारी चीज़ें. So yeah. So tell us more BTS moments, behind the scene moments of shooting Half CA. You've also acted in Half CA or you've just written? I've not. So अब आपने देखा होगा right जब वो पूरा shoot हो रहा होगा. I was there on set for 1 or 2 days only. Okay. Actually I'm a writer हूँ तो मतलब I was writing other projects as well, so I went on the shoot for 1 or 2 days. For me a brilliant thing was getting नीरज भैया जो कैरेक्टर करते हैं, when I saw him on screen एंड जब मैं गई थी तो मेरे वर्ड्स कर रहे थे, वो मेरी वर्ड्स जो मैंने लिखे थे वो बोल रहे थे. एंड आई वाज लाइक कहाँ ले गया यार ये एक्टर. मतलब जब तुम बोलते हो आई हैव नरेटेड माई एपिसोड लाइक 10-20 टाइम्स, इतना नरेट किया होगा, बट जिस तरीके से मैंने नरेट किया मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये ऐसे कर जाएंगे कुछ. सो फॉर मी इट वाज लाइक मेरा डायरेक्टर इधर बैठा था एंड आई कॉट हिज हैंड कि वाओ क्या शॉट दिया है, क्या परफॉर्मेंस दी है. And that was like a very good moment for me on Half CA कि you got the right actor to play that part. And एहसास is a dear friend तो I know वो तो कर ही लेगी, but someone who is new तो उसके लिए डर लगता है ना, करेंगे नहीं करेंगे. मेरे इतने वर्ड जो मेहनत से लिखे हैं 1 साल तक लिखे हैं, उनको कितना शॉट देना पड़ेगा. उनका 1 घंटे का शॉट होगा पर मैंने वो बहुत 1 साल का प्रोसेस था वो वर्ड्स लिखने में. So for me it was like आपके पास ये 1 घंटा आप you can either elevate my words or you can, and he just took it to another level. So that was a very good moment. What was your most favorite part of the script of Half CA? और maybe कोई एकदम funny कौन सा part था जो आपने लिखा यार था? I don't remember it right now, but I had written write off. कि राइट ऑफ को नॉर्मल लाइफ से अकाउंटिंग टर्म है राइट, राइट ऑफ वो अकाउंटिंग टर्म को नॉर्मल लाइफ से जोड़ा था. व्हेन आई रोट मुझे लगा था कि कुछ स्पेशल लिखा है, बट जब रिलीज़ हुआ एंड सीएज ने वो पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ा एंड इट्स अ वॉइस ओवर राइट. वॉइस ओवर सिर्फ इंसान सुनता है, मतलब यू आर इन्वॉल्व इन द विजुअल्स तो वो बहुत चले जाते हैं इफ़ यू ऑब्जर्व, बट audience remembered that write-off wala bit. So for me that was like a very heart-touching moment as a writer, and I felt, and जब मैं लिख भी रही थी मेरे को दूसरे writers बोल रहे थे कौन समझेगा ये, बट जिसके लिए ये शो बना था CAs के लिए उनको बहुत अच्छा लगा. So sometimes you have to just stick to your gut also कि नहीं यार CAs हैं, नहीं भी समझ में आया तो रखते हैं, let's like do justice to the show. And हाँ तो that thing, but I don't remember हाँ क्या था, but कुछ तो lines थे वो.
बट कैन यू शेयर लाइक कि कैसे स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस होता है, लाइक इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ हाफ सीए, Yeah. तो तुम लोग कैसे स्क्रिप्ट लिखते हो, कितने चेंजेस होते हैं, Yeah. कैसी स्क्रिप्ट्स किसको दी जाती है, वो लोग को क्या कैसे पढ़ते हैं, ऑल लाइक डू यू माइंड शेयरिंग दैट? Yeah, actually I've shared Cool, it with perfect. you. So we'll maybe share Yeah. that. So, ठीक है, cool. So yeah. so इसमें ना सीए शो वर्ड डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट द बीट्स, ये वाला. हाँ खोलो. okay. So how we jam is like a very interesting thing, you know. कहाँ से ideas आते हैं, even I have not been able to crack all of this. So these are the beats. मतलब ये कैसे आए, हम लोगों ने बहुत जैम किया, 6 महीने लगे ये डॉक्यूमेंट बनाने में. Okay. So मतलब यहाँ पे है. So if you see the first episode का फर्स्ट सीन यही हो रहा होगा कि नासिक में किया था क्या, मतलब या क्या था? क्योंकि वो लोग फर्स्ट एपिसोड के एंड में, आई टोल्ड यू राइट, दे स्टार्ट फ्रॉम द 12th क्लास. हाँ, तो ये नासिक में शूट किया है या नासिक में ही शूट हुआ है ये. यार मेरे को लग रहा है मेरी स्टोरी है क्या फिर ये? मैं भी नासिक का ही हूँ Yeah. इसीलिए. So I तो क्या है did फिर? you also come to Bombay to do your Yeah, articleship? yeah. Oh, So then you will relate to it Yeah, really so well. I spent 18 years of my life in Nasik and then articleship के लिए मुंबई आया था. Oh wow! So this is what happens. She comes for IPCC this Okay. thing. So Neeraj Bhaiya is the character. So if you see the first scene of over there, we start with he has failed CA final. कहाँ पे लिखा है? देखो he failed for the second time by हाँ, 2 marks. Correct. Sad. So this is what will happen in a scene. ठीक है. Now if you come to the third episode, no, I'll be because मैंने third Yeah. episode लिखा है तो कौन सा नीचे है क्या? हाँ नीचे है. ये सब हमने शो अच्छा ये एपिसोड 1 है. हाँ ये एपिसोड 2 है. ये एपिसोड 2 है. तो मैं एपिसोड 3 सर्च कर लेता हूँ. ठीक है. इसमें देखो आर्ची इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर. शी टाइप सीए फाउंडेशन रिजल्ट्स इन गूगल. द रिजल्ट इज नॉट येट आउट. वी बिल्ड द ड्रामा टू व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव द रिजल्ट. द रिजल्ट इवेंचुअली कम्स आउट. आर्ची हैज पास्ड, पारुल हैज पास्ड बट विशाल हैज फेल्ड. अच्छा जब हम लोग ये लिख रहे थे, पार्थ का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था, द ऑडियंस विल नो, यू विल नॉट नो, वो उसका नाम पहले पारुल था. तो वो काफ़ी चेंजेस होते हैं. हमने लड़की को लड़का किया बाद में. तो बस यहाँ पे बेसिक बीट ये थी कि आर्ची ने अपना सीपीटी एग्जाम दिया है, आर्ची हैज़ पास, और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है विशाल, ही हैज़ फेल्ड. सो दिस इज ये पॉइंट हिट करना है. नाउ इफ यू ओपन माई स्क्रिप्ट आई टेल यू व्हाट अ स्क्रीन प्ले इज. तो एक मिनट, तो ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? इसको बीट बोलते हैं. इसको बीट्स बोलते तो हैं. बीट्स मतलब क्या होता है? बीट्स मतलब एक बीट हिट करना होता है, राइट? तो तुमको ये हिट करना है, ये सारे पॉइंटर्स जो इन द सीन है तुमको ये हिट करने हैं. ओके, Yeah. गॉट इट. सो इज इट लाइक मतलब हुक्स बोलते हैं क्या इसको? हाँ मतलब ये सीन में ये होना चाहिए. ओके. ये सीन 1 है. हाँ. सीन 1 में पता चलना चाहिए कि आर्ची पास हुई है और विशाल फेल हुआ है. अब कैसे करोगे? दैट अ राइटर विल डू. स्क्रीन प्ले राइटर विल. ओके, तो अभी आते हैं स्क्रिप्ट पे फिर. या तो स्क्रिप्ट में भी आपने 2 दिए, सीए शो Yeah, you, एपिसोड 3 फर्स्ट ड्राफ्ट. हाँ फर्स्ट ड्राफ्ट खोलते हैं एक बार. ठीक है. एंड देन आई शो यू द फाइनल ड्राफ्ट कैसा ठीक है, डन. इसको ऊपर कर लो थोड़ा. आई थिंक ये नीचे है स्टार्टिंग वाला सीन. दिस इज द सेकेंड सीन आई गेस. या ऊपर दिस इज द फर्स्ट पेज पे जाते हैं. अच्छा ओके, सॉरी. या हाँ. या सो एस क्यूब इज़ बेसिकली श्रीधर सर क्लास. हम देखते हैं कि सी ए इंटर अकाउंट्स 1 लिखा है एंड वी स्टार्ट. कल सी ए फाइनल के साथ साथ सी ए फाउंडेशन का भी रिजल्ट आया ना, कैसा रहा? हम कट करते हैं एक सबटाइटल. वी कट टू द फ्लैशबैक ऑफ सी ए फाउंडेशन रिजल्ट टाइम ऑफ आर्ची, पार्थ एंड विशाल. हम देखेंगे पार्थ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, आर्ची सिटिंग, मतलब तीनों अपने अपने फ़ोन पे हैं और दे आर गूगलिंग क्या हाल है, मतलब कब आ रहे हैं रिजल्ट्स. फिर नीचे आओ, मतलब पास, मतलब कट्स किए हैं. हाँ तुम लोगों के लिए तो अच्छा है, तुम लोगों के लिए तो अच्छा ही होगा, इसीलिए तो तुम लोग इंटर की पढ़ाई स्टार्ट करने आ गए. पर पास परसेंटेज का क्या? 33%. मतलब 3 में से सिर्फ एक क्लियर कर पाया. कट टू हम जब क्लासरूम में आते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ पार्थ बैठा हुआ है और वो दोनों है ही नहीं. सो ऑडियंस को लगेगा कि वो दोनों फेल हो गए क्योंकि बिल्डअप किया है कि 3 में से आया है. एंड हम करते हैं रैंक किस किस को आया. वी रिवील के पार्थ को आया है. एंड यहाँ पे ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती थी. सीए में 4 लेटर वर्ड RANK से ज़्यादा 4 लेटर वर्ड PASS ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पर अब समझ नहीं आ रहा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँ या ऑल द बेस्ट.
सो बेसिकली ये सब होता है एंड एंड ऑफ द सीन वी रिवील कि आर्ची क्लास में एंटर कर जाती है. क्लास में जब एंटर करती है, विशाल एंटर नहीं करता. वी नो कि विशाल हैज़ फेल्ड एंड आर्ची हैज़ पास्ड. नाउ वही बीट हिट करनी थी कि आर्ची हैज़ पास्ड एंड विशाल हैज़ फेल्ड, बट हाउ यू डू इट इज स्क्रीन प्ले. नाउ इस सीन से क्या हुआ, आई एस्टैब्लिश्ड कि आईपीसीसी की क्लासेस स्टार्ट हो गई, पार्थ को रैंक आ गया, आर्ची पास हो गई, विशाल फेल हो गया. सेम बीट हिट करी मैंने, बट हाउ यू डू इट. एंड प्लस यू एड सच लाइन्स लाइक यू नो पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है. सी इफ यू सी दिस लाइन, सीए इंटर का पोर्शन ओशन जैसा है. एक सेलर को 3 से 5 साल लगते हैं टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, पर तुम्हें सीए इंटर का ओशन पार करना है 9 महीने में. मुश्किल तो बहुत है, पर द गुड न्यूज़ इज इम्पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए दोस्तों ऑल द बेस्ट. चलो शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एंड देन आर्ची एंटर्स. आई थिंक मैं भी एक्टर बन सकता हूँ, है ना? अरे यार, आई थिंक यू शुड हैव ऑडिशन्ड फॉर दिस. नहीं तो एक बात बताओ, सो ये सब जो भी है अपने स्क्रीन के सामने, सो दिस यू हैव रिटन. या अच्छा, so you as a writer, you are responsible for writing the dialogues also, plus the beats also, matlab, and setting the entire atmosphere. Okay, that's a lot of work. It is, and to come up with this, like you're just seeing my first draft है ये, but ये भी ऐसे नहीं आया. पहले मैं सोचती हूँ, फिर मैं कॉपी पे लिखती हूँ, फिर मैं दूसरे कॉपी पे लिखती हूँ, फिर ये सीन बनता है. So it's very, like I told you, we wrote it for 1 year, so it wasn't easy. Now if you see the final draft of this particular scene, that will be different. मेरे को ये इंटरेस्टिंग लग रही है. क्या है, टैक्स इज अ कॉस्ट. टैक्स नहीं पे करने से क्या होता है, पैसे बचते हैं सर. मतलब बेसिकली ये बीकॉम की क्लास चल रही है, तो बीकॉम में टैक्स का सब्जेक्ट होता है, तो टीचर इज लाइक टैक्स इज अ कॉस्ट, टैक्स नहीं पे करने से क्या होता है, पैसे बचते हैं सर. तो क्लास हंसती है, और फिर मे बी इन शॉर्ट रन, पर लॉन्ग रन में क्या होगा, पैर दुखेंगे सर. एंड द क्लास इज लाफिंग अगेन, एंड टीचर इज लाइक तेजस कितना फनी है ना, चाहे तो स्टैंड अप कर सकता था, पर उसने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी. किस लिए? बीकॉम करने के लिए. एंड इफ यू गो डाउन, which brings me to the next cost, where Tejas is paying an opportunity cost. So you are introducing, and पहले, अभी इसका टाइटल राइट ऑफ है, but पहले I wanted to keep it opportunity cost, because the episode का theme is because of your CA journey तुम अपनी कॉलेज लाइफ छोड़ देते हो. So that's the opportunity cost you're paid to become a CA, right? So that's why I wanted to this name. But then you know drafts बदलते हैं, whatever you want थोड़ा side में रखो and everything. So yeah. Got it. Nice. Yeah, this is very very fascinating. ठीक है, so this is the draft script. Okay, yeah, so let's you're saying something. Final draft. Final draft. Yeah, CA episode 3. ये final है, right? 20. सेम ही सीन है, बट इसमें चीज़ें ऐड करी है. सो सेम थिंग. तो एक बात बताओ, एक पूरा ड्राफ्ट लिखने के लिए कितना टाइम लगता है? यार फर्स्ट ड्राफ्ट में हम 15 दिन लेते हैं लिखने में. ये बिगनिंग मिडल 4 पेजेस. हाँ, 4 नहीं, ये 30 पेजेस का था, 25 पेजेस का था. अच्छा. 15 दिन में. पर मुझे लग गए थे ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट है 1 मंथ लग गया था, बिकॉज फर्स्ट सीजन है एंड एवरीथिंग. बट देन फर्स्ट ड्राफ्ट लाना इज नो रीड्राफ्टिंग इज द मेन राइटर्स गेम. सो सेम ही है. कल सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया था ना, कैसा रहा? पास परसेंटेज क्या था? 33%. मतलब 3 में से किसी सिर्फ एक ने क्लियर किया होगा. तो हम देखते हैं 1 डे अर्लियर आर्ची है. आर्ची अपने फ़ोन पे बात कर रही है. हाँ, बस चेक कर रही हूँ, प्लीज़ प्रे करो कि मैं पास हो जाऊँ. कट टू पार्थ, नहीं मैं प्रेवरे नहीं करने वाला. अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो आप बोलोगे भगवान के वजह से हुआ है, जबकि मेहनत मेरी है. फिर विशाल पढ़ी नहीं है. विशाल रिहर्सल में. एक काम करो रोमियो तुम ऊपर देखो, जूलियट तुम नीचे देखो, अब और ऐसे डायलॉग्स लो, ऑडियंस को लगेगा कि बैल्कनी इमेजिन कर रही है. गिरीश बोलता है ब्रो तू ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता हमें. फिर नीचे जाओ, अरे मेरा तो मन है, पर सीए इंटर के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं ना. अरे सीए से याद आया, मेरा तो आज रिजल्ट है. बेसिकली तीनों 2 कैरेक्टर्स हैं जिनको सीए से दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट. थर्ड को अभी याद आ रहा है. सो यू सी द डिफरेंस ऑल्सो इन द कैरेक्टर्स की. आर्ची थोड़ा डरी हुई है, पार्थ कॉन्फिडेंट है कि ही डजंट बिलीव इन प्रेइंग, एंड दिस गाय ही डजंट केयर. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड वी रिवील कि वो सीए छोड़ देता है और वो एक्टिंग में चले जाता है. अच्छा. तो उसका सीडन हमने फर्स्ट सीन के फर्स्ट पेज पे कर दिया. गॉट इट. या सो ऑल ऑफ दिस वी हैव. इसमें नाउ मतलब अभी जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, सो सारे डायलॉग्स यू हैव रिटन, मतलब सारे जितने भी होते हैं.
एंड ह्यूमर ऐड करना, Yeah. फिर वो पूरा एलिमेंट्स मतलब अगर Yeah. कुछ एकदम इमोशनल करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yeah, totally. माय गॉड, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब ऑनेस्टली. It is like I'm telling you, and I would put it out there, writers don't get the credit that they deserve. Like अगर हमने एक साल लिखा है, मतलब प्री प्रॉड और एडिट मिला के 6 महीने लगे होंगे. एक्टर्स का काम 20-30 दिन का हुआ होगा. बट who do you first see? You see the actors first. बट टेल मी वन थिंग, ये फर्स्ट और ये फाइनल ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस था एग्जैक्टली? ये क्या चेंजेस? So it's the same scene. But the way it's done, it's different. Like over here, you see these 3 characters, right? Archie. उधर मैंने कुछ नहीं, उनके dialogues नहीं थे. So you didn't know कि ये तीनों अलग कैसे हैं. But छोटी छोटी details in the dialogues in my first scene, you know these 3 characters. As soon as they come on screen in my episode, you know कि आर्ची डरी हुई रहती है, पार्थ कॉन्फिडेंट है और विशाल थोड़ा लप्पू सा है. So yeah, so this is how like वही writing, this is what it's the difference. And ये थोड़ा finish करते करते आता है. गॉट इट. तो जैसे फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड योर प्रोसेस इज देन फर्स्ट की बीट्स पहले आइडेंटिफाई करो कि Yeah. क्या क्या हो गया, सीन्स क्या क्या Yeah, हो गया, तो yeah. मोमेंट्स क्या हो गए, Yeah. एंड देन उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग करना स्क्रिप्ट चाहिए. राइटिंग पहले स्क्रीन प्ले होगा कि मेरा भी आई कुड हैव जस्ट स्टार्टेड इन द क्लास ओनली, आई कुड हैव जस्ट शोन आर्ची इज इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप, शी हैज पास्ड, एंड देन वो विशाल को कॉल करती है, वो फ़ोन नहीं उठाता है, एंड शी एज्यूम्स शी इज़ फेल्ड. आई कुड हैव डन दिस साइलेंटली ऑल्सो. ये सेम बीट मैं ऐसे भी कर सकती थी ना, वो रिजल्ट देख रही है, कॉल किया, विशाल फ़ोन नहीं उठाता इधर. बट दिस मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीन आई एम हुक्ड कि आर्ची क्लास में एंटर करेगी नहीं करेगी, विशाल आएगा नहीं आएगा, एंड लास्ट में वो आती है कि हमें पता चलता है वो पास हो गई. तो वो 2 मिनट का जो है, यू आर हुक्ड कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा. सो या गॉट इट. दिस इज लाइक हाँ. Are there any other scripts also like interesting ones where you worked a lot and then वो बहुत अच्छे से आ गए, like you have any other scripts also? Have you guys seen Manju? मतलब आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन, मैंने कुछ नहीं देखा होगा, बट Okay. आप जो भी, आई एम श्योर ये ऑडियंस ने देखा होगा पूरा. सो आई विल शो यू मंजू का स्क्रिप्ट. तो Okay. यूजुअली हम स्क्रिप्ट जैसे देखते हैं, ये देखो ये है सीए का काम, एक्सेल शीट में लिखना. वाओ, एक्सेल में मंजू बनाया इज अ पैरोडी ऑफ संजू. ओके. ठीक है, अभी लेट्स गो ऑन Sheet द one से नो ओके या शीट 2 में क्या है, शीट लेट्स सी शीट 1. आई डोंट रिमेंबर, बहुत Okay. साल पहले लिखा था. शीट 1 देखते हैं. सो सी मंजू, दिस इज द ओरिजिनल दिस थिंग, ओरिजिनल विजुअल्स. तो तब क्या था, संजू का ट्रेलर आया था. संजू इज लाइक यू रिमेंबर राजकुमार ईरानी का शो. सो मूवी ना, हाँ I've seen हाँ that. तो उसका Yeah. ट्रेलर आया था, एंड हमने 10 दिन के अंदर मंजू रिलीज किया था. वैसे ठीक है, तो बस जोक्स लिखे थे. विधु विनोद चोपड़ा ओरिजिनली तुम देखोगे, मतलब जो ट्रेलर में इट्स विधु विनोद चोपड़ा प्रेजेंट्स, बट यहाँ पे लाइक अनुपमाज हस्बैंड प्रेजेंट्स ऐसे कि रणबीर एंटरिंग द फ्रेम, तो यहाँ पे बाई एंटर्स द फ्रेम एट जस्ट द स्टारी. सो एवरीथिंग यू हैड टू लाइक कॉपी इट. फॉक्स स्टार, लिटरली फॉक्स एंड अ स्टार, मतलब ऐसे विजुअल्स जोक्स आएंगे, एक फॉक्स रहेगा और 5 स्टार रहेगा, कुछ ऐसे ऐसे जोक्स लिखे थे. तो ये सब किसने लिखा था? ये आपने लिखा था? ये सब? मैंने लिखा था, और एक और राइटर था शशि, तो हमने साथ में किया था ये. और इफ़ यू गो नीचे नीचे आई थिंक जोक ज़्यादा समझ में आएंगे. टेररिस्ट, हाँ, कार सीन, बस सीन. सो बेसिकली एक एक चीज़ जो वो ट्रेलर में हुई थी हमने डाला था. जैसे यहाँ पे देख परेश रावल, तो मैडम, जिग्गी, नेबर, कुक, हुसैन एंड आर मंजू, मतलब ऐसे ऐसे पैरेलल्स लिए थे कि ट्रेलर का फीलिंग आ जाए और लगे कि पैरोडी है. सो इफ़ यू आर वंडरिंग कि पैरोडीज, हाउ डज TVF राइट्स पैरोडीज, बिकॉज they are known for doing parodies, gangs of social media, and this is how it's done कि ट्रेलर का एक एक चीज़ उठाया जाता है, एंड उसके जस्ट फनी चीज़ें सोची जाती है, एंड देन यू रिलेट वैसे. वेरी वेरी क्रिएटिव. Yeah. इसमें कितना टाइम लगा होगा ये सब? यार इसमें बकचोदी करनी होती है. वी डोंट हैव टाइम. हमने ये 2 दिन में लिखा है. अच्छा, 2 दिन में हो गया था. हाँ. एंड देन क्या होता है फिर? आपने ये लिख दिया एंड देन वी पुट इट फॉर प्रोडक्शन. Okay. अ डायरेक्टर गेट्स असाइंड, तो फिर ही डायरेक्ट्स, एंड देन वही हमने 2 दिन में लिखा. 3rd डे डायरेक्टर असाइन हो गया था, 4थे दिन शूट किया, और अच्छा. 5th डे एडिट, 6th डे एडिट, और 7th डे इट वाज आउट.
अच्छा 7 दिन में हो गया पूरा? 7 दिन में हो गया, बिकॉज इट्स अ वेरी वायरल थिंग. अगेन यूट्यूब का वो है ना कि अभी ट्रेंड कर रहा है. इट वॉज संजू वॉज ट्रेंडिंग और नंबर 1 दैट टाइम. सो यू लाइक इफ यू ट्रेंड देन यू विल गेट द ऑडियंस. एंड तब नाउ इफ आई टेल यू अबाउट मंजू इट्स नॉट फन, राइट? बिकॉज ये 6 साल पुराना है, तो यू हैव टू लाइक तब का ट्रेंड पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. गॉट इट. सही है. एंड देन ये बाकी सारे Yeah, दूसरे this शोज is है. things dusky girls go through. So this is Unfair and Lovely, a video. अच्छा ओके. And this is the first draft of that अच्छा of okay. that video. Again, so many things. ये मैंने change. देखा हुआ है. हाँ. हाँ ये आज ही देखा मैंने. So the narrator starts, ये है माँ और ये है उनकी सुपुत्री शेफाली. माँ खुश है क्योंकि बेटी 3 महीने बाद घर आई है, और बेटी खुश है क्योंकि शेफाली बोलती है क्योंकि माँ का प्यार मिलेगा. तो उन्होंने चल छूटी. बेटी खुश है क्योंकि आज दाल के नाम पे पानी नहीं, एक्चुअल में दाल मिलेगा. ऐसा ऐसा कुछ होता है. एंड देन द कैमरा पैन्स टू माँ वॉकिंग टूवर्ड्स शेफाली इन स्लोमो. उसको लगता है वो अच्छा खाना खाएगी, और जैसे जैसे माँ का हाथ बोल लेते हुए डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे ही शेफाली का मुंह खाना ठूसने के लिए खुलता जा रहा है. एंड हम देखते हैं कि वो मुंह पे नहीं लगा, खाना ठूसती नहीं है, कुछ चेहरे पे लगाती है. एंड इट इज़ अ उपटन. और ये है थिंग्स डस्की गर्ल्स गो थ्रू. टाइटल आएगा थिंग्स डस्की गर्ल्स गो थ्रू. ओके. हुई यही चीजें हैं इन द फाइनल दिस थिंग्स, बट इट्स मोर स्नैपियर एंड Correct. या वाओ. एंड एक बात बताओ, जैसे अगर हाफ सीए की बात करें, उसको फ्रॉम राइटिंग टू द लास्ट डे, मतलब जो शूटिंग तो उसको टोटल कितना टाइम लगा? आपने बताया 1 साल राइटिंग में लगा. 1.5 year. अच्छा 1.5 ईयर. तो इसमें 1 साल राइटिंग ही हो गया. हाँ. एंड देन आप फिर पूरा स्क्रिप्ट खत्म करते हो, फिर शूटिंग शुरू होती है. टीवीएफ में ये प्रोसेस है. अच्छा. यूजुअली बाहर ऐसा है कि थोड़ा बहुत चलते रहता है, टीवीएफ में नहीं. सो ये सिर्फ मतलब राइटिंग होती है, फिर नरेशंस होते हैं, फिर फीडबैक होता है, तो 1 साल लग जाता है कुछ अच्छा बनने में. जैसे एस्पिरेंट्स एक बहुत बड़ा शो है, बहुत अच्छा शो है, दैट टुक लाइक 2 years टू राइट. अच्छा. Yeah, and that he was just one writer who wrote it. So it, because it's the writing, rewriting, feedback, सबके feedbacks incorporate करो and करते जाओ. Yeah. गॉट इट. एंड देन फिर हाफ सीए में तो अगर फिर राइटिंग हो गया, फिर शूटिंग हो गया, एंड देन फिर रिलीज कितने देर बाद होता है वो, मतलब फाइनल प्रोडक्ट आने के बाद? हाफ सीए में इट वाज वेरी जल्दी हो गया था. हमने 1 जुलाई को अनाउंस किया था. जून मई एंड तक शूटिंग खत्म हो गई थी. 1 जून को हमने अनाउंस, 1 जुलाई को, बिकॉज इट्स सीए डे, वी अनाउंस कि हाफ सीए आने वाला है. एंड 26 जुलाई को इट रिलीज्ड. सो इट वाज वेरी क्विक. राइट नाउ हाफ सीए सीजन 2 लाइक वी आर फिनिश्ड विद राइटिंग. शूटिंग हो गई है, एडिट चल रहा है, वी डोंट नो कब रिलीज होगा. सो अच्छा, आप राइटिंग शूटिंग दोनों हो गई है? शूटिंग हो गई. शिट, मतलब मैं इसमें नहीं आ पाऊंगा गाइस. चलो ठीक है, नेक्स्ट we will have special appearance by कुशल. CAs who are not who are doing something different. Yes. What kind of acting can I do? जैसे कोई कौन सा सीन मेरे लिए रेलेवेंट हो सकता है? I think some villain type of. You are the first person to say this. मेरे को हमेशा अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स ही मिलेगी. ओके, हीरो नहीं. और विलन का भी कर सकते हैं. हाँ, yeah. Villain would be like, you've done CA ना, so you've now like, do you have articles under you? नहीं, आर्टिकल्स नहीं है, बट या आई मीन आई हैव पीपल हु वर्क, इंटर्न्स है. So बट villain तो तुम हो ही. If you have आर्टिकल्स तो नहीं, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग अ प्रैक्टिस, बट हाँ इंटर्न्स काफी है जो आर्टिकल्स जैसे ही होते हैं. So you are the villain, right? My interns are very happy with me, and they have been with me since the last 2 years. So I'm happy. I'll talk to them. I would rather hear them telling this. हाँ, बट या आई थिंक मेरा ऐसे बचपन में ड्रीम तो था कि कुछ ना कुछ एक्टिंग में करना है, बट कभी मैं मतलब ऑफ कोर्स प्रोफेशनली तो किया नहीं, बट ऐसे ही टाइम पास. GMCS नहीं होता है मैनेजमेंट, वहाँ पे बहुत एक्टिंग वगैरह करते थे. That was my time in my CA that I enjoyed the most. Actually we should do something. Let's like, I'll think of something, we'll make a content together. Done. Pakka. Tell me the dark side of working in this industry. The dark side of working in this industry is, I think, because there's no certainty in this industry. आज मैंने हाफ CA लिखा है, कल मैं क्या लिखूंगी मुझे नहीं पता है. मुझे दूसरा काम मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता है. एंड इट्स मेंटली ऑल्सो चैलेंजिंग ऑल्सो. आज हाफ CA is nominated for all these awards and all of these things. नेक्स्ट नॉमिनेशन, नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आएगा. सो मेंटली आप हमेशा घूमते रहते हो कि ठीक है, इट्स लाइक गोइंग टू इंटरव्यूज अगेन एंड अगेन. Just imagine doing that and
like an actor's job is not tough when he's on set, but उसका जॉब पहले बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक जॉब मिलने के लिए उसने कम से कम 20 ऑडिशंस दिए होंगे, वो 20 बार रिजेक्टेड हुआ होगा. सेम थिंग विद राइटर ऑल्सो, लाइक वी राइट असेसमेंट्स कि अभी मेरे को ये प्रोजेक्ट में लो, तो हम एक मॉक स्क्रिप्ट लिख के देते हैं ऐसे ही, यू नो दैट ऑल्सो टेक्स टाइम. अगर मैंने बोला 1 साल लिखा है तो हम ऐसे ही देते हैं कि सी इफ आई फिट द बिल और नॉट. So this is very uncertain, you know, कि I don't know when I'll get my next paycheck, will it be big enough, will I be able to go for a holiday and all of that. So uncertainty is very big part of this industry. So do you think that creativity can be built over time or it's inborn? It is something is inborn. Like मैंने बहुत सारे राइटर्स ऐसे भी मिली हूँ जो लिख नहीं पाते हैं, मैंने उनको मुँह पे बोला कि तुम राइटर नहीं हो, एंड क्योंकि दे डोंट हैव दैट innate skill of, you know, seeing things differently, but you can build it also. मतलब I always believe कि तुम सिर्फ एक certain amount of चीज़ें ही लेकर आते हो, उसके बाद it's your hard work, dedication and you know your efforts that take you to places. Like I was not a writer, मैं CA field से आई थी. For me it was just मैं लगी रही. And how do you build creativity is observing. एन आर्टिस्ट के लिए उसका इंट्यूशन सबसे ज़्यादा, उसके इंस्टिंक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू क्रिएट योर ओन एक्सरसाइजेस टू बिल्ड योर इंस्टिंक्ट्स. यू नो समटाइम्स यू ऑल्सो फील राइट कि ये इंस्टिंक्ट से मैंने किया तो इट वर्कड. how do you build your instincts just comes like that, right? So create those exercises to build those instincts, you know, like in acting only there's an improvisation exercises. So improvisations में बस actors on floor होते हैं and they just improvise a scene, कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, and it's very instinct based exercise. Like you know, अभी मेरा ये बोलने का मन है, लैंड करेगा नहीं करेगा वो important नहीं है, कुछ बोलो, trust, don't think and just do it. धीरे धीरे इफ यू नो, क्योंकि मैंने ड्रामा स्कूल में ये किया है. फर्स्ट डे मैं बहुत डरी थी. बाय द एंड ऑफ 2 months आई वॉज, मेरे चीज़ें लैंड करने लग गई थी, यू नो, चीज़ें बेटर होने लग गई थी. आई यूज टू अंडरस्टैंड द सीन, आई कुड टेक इट टू अनदर लेवल. सो ये बिल्ड किया जा सकता है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डेवलप few exercises that you do every day. There's a book I would recommend. It's called The Artist Way for all the artists. And you know, it's given very simple exercises like, you know, क्या क्या कर सकते हो to build those instincts. So that really like I try doing those exercises to, you know, sharpen my instincts, because again thoughts कहाँ से आएंगे. You have to develop few things. मेरे साथ कभी कभी ऐसे होता है, क्रिएटिव ब्लॉक होता है, जैसे कंटेंट में क्या आइडियाज़ है, क्या डालना है. तो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ दैट आई जस्ट टेक लाइक अ प्रॉपर ब्रेक एंड देन मैं यहाँ पे, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक नीचे दोपहर, लाइक नीचे रात को या दोपहर में, एंड जस्ट शांति से, मतलब नथिंग, नो मोबाइल, नथिंग, एंड जस्ट लाई डाउन ऑन दैट रिक्लाइनर एंड जस्ट कुछ नहीं, लाई डाउन, लाइक थिंक नथिंग, एंड जो भी मतलब कुछ ना कुछ थॉट्स आते ही ऑफकोर्स, दैट टाइम आई गेट द बेस्ट आइडियाज़. एंड उसके अलावा ऑल्सो नाउ व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग, इसकी क्रिएटिव ब्लॉक जब आता है, एवरी डे व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई ट्राई टू राइट सम और द अदर थिंग. तो जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट पे मैं, सो आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट राइटिंग, एंड तो आई एम लाइक, आई हैव जस्ट फिनिश माई 3rd book लास्ट वीक ओनली. तो उसमें मतलब आई वॉज थिंकिंग कि कैसे इसको मतलब और अच्छे से स्टोरी टेल कर सकते हैं. एंड इन द मॉर्निंग व्हेन आई एम वेकिंग अप, तभी थॉट्स बहुत फ्रेश होते हैं, एंड आई जस्ट राइट एनीथिंग रैंडमली, क्या हुआ मेरे साथ येस्टरडे, या तो आज क्या होने वाला है, या तो व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, एनी रैंडम थिंग, एंड दैट हेल्प्स मी. ये मैं पोस्ट नहीं करता हूँ किधर, पब्लिश नहीं करता हूँ, बट दैट जस्ट हेल्प्स मी टू स्टे मोर क्रिएटिव. जब जैसे जैसे मैं ज़्यादा लिखता हूँ वैसे वैसे आई फील दैट आई एम एबल टू बिकम अ गुड स्टोरी टेलर. Can you believe that's the first exercise of the artist way? Wow. To get up and write, just write, don't think like. Yeah. That's the I didn't know first this. exercise. So you've been doing it like Yeah. involuntarily, but yeah, I'm telling that's the first exercise the author recommends over there. And Oh, wow, I didn't know this. Yeah, it's great, because what happens is when you write and everything, you're just keeping the creativity. You're not Correct. stopping your thoughts also. Yeah. So it works really well like that. Yeah, I agree. And just like last question on this, so basically if anyone wants to get into writing, or if anyone wants to get into this industry and they are just graduated or अभी बस उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, so what is one piece of advice you have for them? If you want to get into this industry, it's going to be very hard. There will be no money in the starting 4-5 years, और फ्यूचर में भी हमेशा ये रहेगा पैसे नेक्स्ट पेचेक कब से आएगा.
सो बी फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू कम हियर. ऐसा नहीं है, मतलब आई सी अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट पीपल दे टेक देयर मनीज वेरी कैजुअली. मेरा CA ट्रेनिंग है, मैं I come from a business family, so my monies are like very sorted, like I don't overspend, or like that way I'm very sorted. But they don't have the basic knowledge of their finances and everything. And here when you enter, you are a business. Your name is a business. Like if I'm Khushbu Bed का writing business है. I am the one who's going and pitching myself to different production houses. So you have to treat yourself as a business. What is your growth? Make your own financial plans. Like I know it's a very boring job but that's like, be an artist, but first be a businessman. If you want to have a life where you can travel and थोड़ा decent life चाहिए, art तो हो जाएगा, वो तुम कर लोगे, पर थोड़ा business wise भी सोचो. That's my advice. Like don't take these things lightly. Yep, that's a brilliant piece of advice. I think managing your finances is like one of the most crucial skills you should learn. And just one last thing. So you've done your CA and I've also done my CA. So just take a related topic pe. Is there any funny conversation that you remember from your CA days with someone? Like what's the funniest conversation you've had with a CA friend? Funny, I mean, so there was this guy Rahul Agarwal. Okay, so he was मतलब CPT 2012 में दिया था हमने, 11 में दिया था. He was All India CPT first rank. 2012 में IPCC दिया था. He was like 3rd or 4th rank. And then 2015 में CA final दिया था. He was CA final first rank. And wow. Yeah, I know, right? But he was sad. What? Yeah, because I didn't get first in all of the 3. Shit, seriously? Yeah. So he wanted that record of being first in all of them. So yeah. वैसे तो उस हिसाब से मैंने भी sad होना चाहिए फिर. मेरे को भी first नहीं मिला तीनों में. But you're under 10, dude. What is with No, toppers? I mean with that logic even I should feel sad. But my God, फिर आपने उसको समझाया कि you should be happy. We are not that friends, but this is that character. Like this is this is something that I heard, but I can expect कि वो था वैसा, very passionate about getting first rank. Yeah, I mean I don't know about me, but यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो रैंक आने के बाद भी खुश नहीं होते, कुछ ना कुछ ये कंप्लेंट्स या तो ये होते. मैंने बाय द वे मैं जब इंटर का रैंक आया था, 10th रैंक आया था, तब मैं भी थोड़ा खुश नहीं था, बट रीचेकिंग पे डाला था मैंने, and then 10 से 5 हो गया था. Really? Yeah, so 16 that works? Yeah, so 16 marks were not awarded to me in accounting. And the examiner who had checked the paper, he checked that question, सारे right answers थे उसमें, 16 मार्क का क्वेश्चन था, टोटलिंग करते टाइम वो 16 मार्क दिए ही नहीं. So then, and I was confident कि यार accounts में I can't get 62, I got 62 out of 100 and the paper was very simple and almost I knew that सब questions almost मैंने सही solve किया. I was expecting 85 like in that paper and I was like कि चलो अभी रीचेकिंग में डाल के देखते, छोड़ो ना, अभी 10th रैंक फेल तो नहीं होगा, मतलब रैंक नीचे जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा. तो देन आई गॉट टू नो कि 16 मार्क्स बढ़ गए एंड देन वो 10 से 5 हो गया था इंटर में. ओह माय गॉड, दिस इज सच अ गुड स्टोरी. यूज करूंगी हाफ सी. आई विल यूज दिस इन मैं मेरा स्टोरी बताता हूं, तुम लोग पूरा हाफ सी में एकदम ये कर लो. बट कंडीशन इज आई आल्सो वांट वन सीन. गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड लेट हर नो दैट ओके आई विल बी अ गुड एक्टर. Yeah, we'll try. Let's see how season 2 does. And yeah, I'm just kidding, but yeah, thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके and बहुत मतलब crazy insights मिले about writing industry. This is like a new creative industry. And thanks for sharing your scripts and being very transparent about the entire process as well. Thank you. I had fun. I had a lot of fun and I'm glad कि किसी ने writing process को जानने की कोशिश की. So thank you. Really very impressive. And me, like even I'm kind of a writer. Yeah, I've written 2 books and I know like the pain it goes, like we have to go through when we don't get ideas. So that is something which I wanted to show to the audience. But see, काफी like मजा आया and wish you the best for your next season of Half C as well. Thank you. You too. All the best. Yes. You're doing thanks. amazing work. Yeah, just continue and like so happy that CAs are doing content creation and everything. Yes. So thank you so much. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सकते हैं फ्यूचर एपिसोड्स में. ऑल्सो अगर आपको आपके घर के लिए या ऑफिस के लिए चेयर्स खरीदनी है, आई वुड हाईली रिकमेंड बाइंग इट फ्रॉम द स्लीप कंपनी एंड दे हैव सेंड मी दीज अमेजिंग चेयर्स एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कंफर्टेबल है ये. If you want to buy them, use my code Kushal5 to get additional discount, and they have been using a patented smart grid technology जिससे आपको बैक पेन भी नहीं होता है. So thank you so much once again for watching this episode, and keep sharing all our episodes with your friends and keep giving us feedback so that we can improve and come up with better quality content.